This is the 16th webinar of the. Why is there an echo? Kindly mute your mics, please. There is an echo coming. Yes. So let me welcome all the distinguished colleagues to the 16th webinar of the National Good Governance webinar series on the Prime Minister's award-winning initiatives under the theme Innovations at District Level. So this series has been commenced in pursuance of the directions of the Honorable Prime Minister in his review of the scheme for Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration on 1/12/2021, that the Department of Administrative Reforms will hold video conferences and webinars with district collectors and other officers on specific themes in which the award winners will be invited to share their experiences. And the Honorable Prime Minister also directed that district collectors would be invited to participate in this. And in each of the 15 webinars that we've held, we've had participations of more than 1,000 to 1,500 officers, at times even more than 2,000 officers participating in these events. So the compendium of the National Good Governance webinar series, which were conducted in 22-23, were released by the Honorable Vice President of India on 20th April 2023 in the inaugural session of the civil service events. And we've had a series of very eminent and distinguished officers who have contributed significantly to policy making, participating in these events. In today's event, we have two award winners. The first is the Chandauli Black Rice Initiative of Uttar Pradesh government, which was awarded the PM's Award for Excellence in Public Administration 2020 in the category Innovation District. And we have the award winner, Shri Navneet Singh Chahal, the Collector and District Magistrate currently in Agra District. And the second initiative will be presented is Operation Parivartan, which is an initiative of Solapur District of Maharashtra. And this was awarded the PM Award for Excellence in Public Administration for the year 2022. And we have Ms. Tejasvi Satpute, the Deputy Commissioner of Police of Mumbai. So she is actually the first award winner who is from the non-IAS category. In fact, she is actually the first award winner from any other All India service under the PM's Awards for Excellence in Public Administration. So let me give a brief account and introduce the speakers today. Shri Navneet Chahal is an officer of the 2011 batch of the UP cadre. He has a bachelor's degree in electrical engineering from the University of Punjab and an MBA in finance. He has worked as collector and DM Mathura of JP Nagar, Chandauli districts, and the CDO in Jhansi and Meerut. So Chandauli was ranked in his tenure as the first in the aspirational districts program. So this project has witnessed a huge transformation in terms of the farmers' incomes and was awarded the PM Awards for Excellence in Public Administration 2020. The second initiative award winner, Ms. Tejasvi Satpute, she is an officer of the 2012 batch and she has held various positions in her career. She served as SP in Pune and DCP Traffic in Pune, then SP at Satara and SP at Solapur. She is currently the DCP headquarters in Mumbai, and she has a bachelor's degree in biotechnology from Pune University, and she has gained expertise in various areas of policing, including community policing, emergency response, and conflict resolution. Operation Parivartan has transformed the lives in Solapur district by weaning citizens away from alcohol and from liquor production and into organized work activities. So let me welcome both our award winners. We'll play the award-winning films that were prepared on the occasion of the Civil Services Day. These were shown to the Honorable Vice President and the dignitaries who joined the Civil Services Day. I'll ask the division to kindly play the films, please. Akash, kindly allow this to share.
छोटी सी पहल बनी बड़ी बदलाव की मिसाल। उत्तर प्रदेश का चंदौली, धान का कटोरा कहा जाने वाला ये इलाका ब्लैक राइस यानी काली बासमती के लिए मशहूर हुआ है। चंदौली के जिला प्रशासन और कृषि विभाग के द्वारा ये प्रयास किया गया कि एक नया इनिशिएटिव, चंदौली ब्लैक राइस इनिशिएटिव, यहाँ पर शुरू किया जाए। करीब 2018 में 30 प्रोग्रेसिव फार्मर्स को इन्वॉल्व किया और काले धान की खेती कराई। इसमें 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उत्पादन हुआ और 300 क्विंटल से अधिक प्रोडक्शन हुआ। और हमारा जो प्रोडक्ट था उसे विभिन्न होटल चेन्स और मॉल्स में शोकेस किया गया और रिजल्ट ये हुआ कि हमारा चंदौली ब्लैक राइस ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी के किसानों के करने से प्रेरित होकर के हमारे जिलाधिकारी ने चंदौली में जो है काला चावल का जो है प्रोड्यूस किया और इस चावल में हमें समय का बचत है, हमें जल का बचत है, हमें कीटनाशक का बचत है, हमें रसायन का बचत है। ये शुद्ध रूप से प्राकृतिक वैरायटी है और यहाँ काला चावल के रूप में किसान जो है अपनी आमदनी जो है 5 गुनी करने में सक्षमता की तरफ से बढ़ रहा है। काला चावल का रेट हमारे 85 रुपए धान का जो है किसानों को मिल गया है। इससे किसान बहुत खुशहाल हैं और इस काला चावल की खेती करने के लिए वो निरंतर ही अपने खेतों के एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। और जो प्रथम साल में हम लोगों के किसानों ने जो किया था 100 एकड़ में, वो अब उसको बढ़ाकर जो है 250 एकड़ में खेती की जा रही है। 4 लैब्स में इसको टेस्टिंग किए गए जिसमें फाइबर और जिंक की मात्रा इसमें नॉर्मल चावल से ज्यादा है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है, हार्ट पेशेंट और स्ट्रोक्स को भी रोकता है। किसानों की आमदनी के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और हमारे भारत सरकार का, हमारे उत्तर प्रदेश कृषि मंत्रालय की जो मंशा है उसको हम पूर्ण करके दिखाएंगे, यही हमारा संकल्प है। और बड़े बड़े खुशहाल, बड़े सुखी मन से हम सभी किसान जो है आगे प्रेरित हैं कि खूब भारी मात्रा में इसकी खेती करेंगे और देश का नाम काला चावल के रूप में चंदौली का नाम रोशन करेंगे। इस सक्सेस को देखते हुए चंदौली में 1000 से अधिक फार्मर्स ने ब्लैक राइस का उत्पादन किया है। 500 से अधिक हेक्टेयर्स के क्षेत्रफल में ब्लैक राइस का उत्पादन हुआ है और विभिन्न बड़ी फर्में हमारे संपर्क में हैं, उत्साहित हैं और चंदौली ब्लैक राइस को खरीदना चाहती हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष हम किसानों को और भी बेहतर मूल्य उनकी उपज का दे पाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले ने शराब के अवैध व्यापार जैसी गंभीर समस्या पर ऑपरेशन परिवर्तन के द्वारा किया है कठोर प्रहार। इसके तहत एक्शन, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन और अवेयरनेस जैसी पहलों ने न सिर्फ इस गैर कानूनी कार्य से जुड़े लोगों के जीवन को बदला है, बल्कि आज उनके पास सम्मानजनक जीविका भी है। इसके माध्यम से हॉटस्पॉट और रेडिंग डेंस की पहचान की गई, नए पुलिस थाने का निर्माण हुआ और पुलिस अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। इस गैर कानूनी कार्य में शामिल लोगों के डेटा को एकत्र कर उनकी पहचान की गई और काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें और उनके परिवारों को विश्वास में लिया गया और हर एक रेड के बाद उन्हें वैकल्पिक आजीविका को अपनाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन के पहले कोई शराब के धंधे में पुलिस का टेंशन था, कुछ भी करने को नहीं मिलता था, गांव में इज्जत नहीं मिलती थी, इसलिए उसमें बहुत टेंशन था। अभी पोहे का धंधा करता हूँ, किसी का टेंशन नहीं, पुलिस का टेंशन नहीं, किसी का नहीं, गांव में इज्जत है। दारू बेचना अच्छा नहीं लगता था पर मजबूरी के कारण चलाते थे। ऑपरेशन परिवर्तन जब से आया है तब से मैं ये कपड़े का दुकान लगाई हूँ। अब कपड़े का दुकान है मेरा, व्यापार चलाती हूँ मैं। पहले लोग रिस्पेक्ट नहीं देते थे, जब से ये दुकान चालू किया है तब से लोग रिस्पेक्ट देना चालू किए हैं और अच्छे तरीके से बात करते हैं। वैकल्पिक, स्थायी और सम्मानजनक आजीविका प्रदान कर इन परिवारों को बसाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सोलापुर पुलिस इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसके तहत अवैध शराब के व्यापार से जुड़े लोगों को किराना या चाय की दुकान, कृषि, युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, सिलाई, कढ़ाई से जोड़ा गया है। जब से ऑपरेशन परिवर्तन शुरू हुआ है, हमारे महिलाओं के अंदर बहुत सारा बदलाव आया है। जो औरतें
जो हाथ भट्टी में काम करती थी वो अभी सम्मान के साथ ये काम कर रही है और उनके घर बैठे काम मिल रहा है। परिवर्तन होने के बाद किराना दुकान चालू किया, जब से हमको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम खुलेआम हमारा धंधा चालू है। पहले सिर्फ पैसा कमाता था, अभी पैसा भी कमाता हूँ और इज्जत भी मिलती है। ऑपरेशन परिवर्तन के द्वारा आज अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री में अप्रत्याशित रूप से कमी आई है। अपराध का ग्राफ भी गिरा है। साथ ही इस ऑपरेशन ने समाज के उस वर्ग को एक ऐसे सम्मानजनक जीवन की राह दिखाई है जिस राह पर उन्हें अपना उज्जवल भविष्य साफ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन के माध्यम से अवैध शराब के व्यापार पर अंकुश लगाने का किया जा रहा सफल प्रयास Let me invite Sri Navneet Singh Chahal, currently District Collector, Agra, to make the first presentation, and thereafter we'll invite Tejasvi Satpute. Navneet Chahal ji, please go ahead. Sir, can we have the presentation, please? Good morning, sir, ma'am, all the distinguished officers. I am Navneet Singh Chahal, District Magistrate of Agra, and I'm going to present to you Chandauli's Black Rice Initiative, which won Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2020 under the Innovation General District category. Black rice, a crop which was not even grown in Chandauli till the year 2018, became the district's ODOP product, the one district, one product, in a matter of 3 years. Next. As per the NSSO survey, over half of India's workforce is employed in agriculture sector, and around 1/4 of them are below the poverty line. The government had set a target of doubling farmers' income by 2022, and with that in mind, the district administration of Chandauli and the agriculture department of Chandauli thought of moving in that direction. Next. देश के किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़। Next, the same had been envisioned, mentioned in the budget speech in February 2016. The clear agenda of the government was to increase farmers' income. So we had started working on that. Next. But the question arose how? How do we double farmers' income? How can we do it in a short time? We at Chandauli decided to find a high-value crop that would be grown in Chandauli's climatic conditions. Next. Chandauli is popularly known as the rice bowl of Uttar Pradesh. The soil and climatic conditions of Chandauli are favorable for paddy cultivation. During Kharif season, around 5 lakh metric tons of common paddy is produced every year in Chandauli. Next. The high value crop we therefore chose was black rice, or this is also called as the sugar-free rice. If we compare black rice with the common rice, black rice sells for around rupees 300 per kg, while the common white rice sells for around rupees 30 to 50 per kg. Add to it its benefits. It is rich in nutrients and antioxidants. It prevents cancer. It is diabetic friendly. It has anti-inflammatory properties. We foresaw that not only farmers' income will double, but it will increase many times if we go ahead with this initiative. Next. So we implemented the Chandauli Black Rice Initiative in a phase-wise manner. Next. 2018 was a pilot phase where we started with a small group of farmers to test if our strategy would work well. In the year 2019, which was the implementation phase, we increased the number of farmers after having a good achievement in the pilot phase. And in 2020, we scaled it up to a higher level. This was the scale-up phase. Next. In the pilot phase, Kharif 2018, we tested the viability of our initiative with 30 progressive farmers who produced black rice in 10 hectares of land.
Seed distribution was done at the Krishi Vigyan Kendra. Educative seminars as to how to grow black rice was given to all the farmers. Line transplantation was done under the supervision of experts, and the entire cultivation was done in an organic manner. So there was no use of chemical fertilizers and pesticides. Around 300 quintals of produce was produced, and scientists and labs tested it. We got the produce tested from various labs, and it was certified to be nutrient rich and chemical free. We marketed the product, which was produced through print and electronic media, and showcased it across national exhibitions. The result was very positive and encouraging. Next. In the second phase, the implementation phase, with the success in the pilot phase, we increased the area under cultivation. We roped in around 400 farmers who cultivated the crop in around 250 hectares of land and produced around 8,000 quintals of black rice paddy. Our focus during this phase was to increase the farmers' market access. So we formed Chandauli Kala Chawal Krishak Samiti, which comprised of district's black rice farmers. We helped them apply for collective mark, which registers CKC, the Chandauli Kala Chawal, as a community property of black rice farmers of Chandauli district, probably first of its kind in the state of Uttar Pradesh. Attractive packaging and logo were designed, and district administration, the industries department, the agriculture department, all came together and handholded the farmers. All legal formalities like obtaining FSSAI number were also met. The black rice was displayed at premium hotel chains and malls, ITC Chaupal Sagar, and we received a very good sort of appreciation for that. Next. Here are a couple of photographs of display of black rice at national exhibitions and Honorable Prime Minister visiting black rice stall at Kashi Ek Roop Anek program at Varanasi. Next. So to explore also the export potential beyond the domestic market, we collaborated with APIDA, who provided us contacts of top rice exporters of the country. And a buyer-seller meet of all those exporters was held in Chandauli with the Chandauli black rice farmers. The result was that around 800 quintals of produce was exported to Australia that year by an exporter. So that was very encouraging for the farmers. Next. These are some of the photographs where we held buyer-seller meets with all the exporters from across the country who came over there. And another photograph of flagging off of the export product to Australia. Next. So we had set out with a target of doubling farmers' income, and we are proud to tell you that farmers' income increased by 5 times because of conversion from common rice to black rice. Next. So if we do a profitability comparison between common paddy and black rice paddy, the cost per hectare of production of common paddy is around rupees 58,000 per hectare, while for black rice paddy is lesser, it is at around 42,000 per hectare. That's because chemical fertilizers and pesticides are not used. The revenue that we have calculated is at the MSP of that time, rupees 1815 per quintal, which comes out to be around 1,12,000. For black rice, it is around 8,500 per quintal. That's a very considerate amount that we have taken, a bulk rate, and it comes out to be around rupees 3 lakhs. So if we see the profit per hectare, profit for common paddy comes at around 54,500. And for black rice, around more than 2,50,000, which is more than 5 times that of common paddy. Next. So with the encouraging results during the implementation phase, during the scale-up phase, 1,000 plus farmers joined us in our initiative, and they produced black rice in Chandauli 500 plus hectares of land. Chandauli Kala Chawal Krishak Samiti, it was converted into an FPO and selected as an ODOP product in Chandauli.
Under the ODOP Market Development Assistance Scheme, black rice stalls were displayed for sale at Pragati Maidan, New Delhi, Surajkund Mela, Haryana, Agra Taj Mahotsav, Lucknow Mahotsav, Bareilly Mahotsav, Hunar Haat, etc. And under different other schemes like ODOP Finance Assistance Schemes, grants were given to farmers. ODOP Training and Toolkit Scheme, farmers have been trained for business development and entrepreneurial skills and organic farming. Next. So if we see the project progress at a glance, the graph shows that initially we started off in 2018 with 10 farmers, and in 2020 we increased to more than 500 farmers joining us. The number of the production increased from 30 metric ton to more than 1750 metric tons in 2020, and the area under cultivation increased from 10 hectares to more than 500 hectares. So this initiative gave good results. Farmers were satisfied. They got good income, and the product which sells in the retail market at around 300 rupees per kg is available now on Amazon, Flipkart, IndiaMart, ODOP Mart for sale, and is giving good benefits to the farmers. Next. The initiative, because of its success, got replicated in various districts, not only in Uttar Pradesh, but in the adjoining states as well. More than 15 districts during that time took seeds from KVK Chandauli, Agriculture Department Chandauli, and the Chandauli Kala Chawal Krishak Samiti themselves. And from across the state also, people contacted us and got seeds, and they are also reaping benefits. I'd like to share a short glimpse of our journey through a video. Please, the next slide, please. उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली को धान उत्पादन में प्रमुख स्थान रखने वाला चंदौली अपनी पारंपरिक चावल की खेती के अलावा औषधीय गुणों से भरपूर ब्लैक राइस के उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा है। बिना किसी रासायनिक खाद के पैदा होने वाले इस ब्लैक राइस की बाजार में फुटकर कीमत 300-400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है, जबकि सफेद भूरे चावल की कीमत सिर्फ 30 से 50 रुपए प्रति किलो ही होती है। ब्लैक राइस में विटामिन और खनिज तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसमें सर्वाधिक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहता है एवं आयरन और जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंथोसाइनिन पाए जाने की वजह से इस चावल की काला होती है, जो कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में विषाक्त करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, फाइबर और प्रोटीन की प्रचुरता सामान्य चावल से कहीं ज्यादा। तमाम शोधों के बाद यह प्रमाणित हुआ है कि ये चावल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में विगत दिनों वाराणसी में हुए कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने जनपद चंदौली द्वारा प्रदर्शित किए गए खान का अवलोकन किया। माननीय मुख्यमंत्री से इसकी जानकारी भी ली एवं इसकी चंदौली में उत्पादन के लिए क्योंकि देश ही नहीं विदेशों में भी ब्लैक राइस की मांग बढ़ती जा रही है। ब्लैक राइस की खूबी और इसके बढ़ते हुए बाजार को ध्यान में रखकर कृषि विभाग चंदौली ने वर्ष 2018 में ब्लैक राइस को मंगवाकर जनपद के 30 प्रगतिशील किसानों में वितरित किया और नर्सरी डालने से लेकर उत्पादन तक की सारी प्रक्रिया कृषि विभाग और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में समय समय पर आयुक्त वाराणसी और जिलाधिकारी चंदौली के द्वारा काला धान की वस्तु का निरीक्षण किया गया और अपनी प्रॉपर्टी करवाई। जिलाधिकारी के निर्देशन में चंदौली काला चावल कृषक समिति का गठन किया गया है, जिससे किसानों के ब्लैक राइस को आसानी से बाजार में उपलब्ध कराया जा सके। चंदौली काला चावल के कलेक्ट पोषण नाबार्ड द्वारा किया गया है।
29 नवंबर 2019 को और बायर मीट का आयोजन किया गया। आए बायरों ने काले चावल पर काफी रुचि दिखाई, जिस उपरांत 22 जून 2020 को 80 मीट्रिक काले धान की एग्रो एनर्जी लिमिटेड को ऑस्ट्रेलिया निर्यात हेतु बिक्री की, जिसकी मंडलायुक्त वाराणसी मंडल दीपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना। जिलाधिकारी चंदौली, कृषि विभाग चंदौली यहाँ के भारतीय किसानों के सफल प्रयासों से भविष्य में धान का कटोरा के साथ चंदौली ब्लैक राइस के अधिकतम उत्पादन के चांस Thank you, sir. Thank you very much. Kindly stay in the web room. We'll come back for the Q&A session. Kindly stay in the web room. We'll come back to you for the question-answer session. I'll now invite Mrs. Tejaswi Satpute, the DCP Mumbai, to make a presentation on Parivartan. Tejaswi ji, please. Thank you, sir. I'll request Akash ji, please display the presentation. Good afternoon, all. Operation Parivartan is about the journey of people who were involved in illicit liquor trader to dignified laborers. Operation Parivartan is a zero-cost, innovative, replicable, and sustainable solution. Next, please. In this presentation, we would be discussing these things. Operation Parivartan के highlights हम discuss करेंगे. What was the actual problem? What was the traditional approach towards this problem? And the evolution of Operation Parivartan, its components, उसका impact क्या रहा, उसका governance angle क्या है, and the achievements of the Operation Parivartan. Next, please. इसके highlights के बारे में सबसे शुरू में जानेंगे. It's a सस्टेनेबल एंड स्केलेबल सोल्यूशन. लगभग 2 साल से ऑपरेशन परिवर्तन चल रहा है और इवन आफ्टर माय ट्रांसफर द सक्सेसर एंड द टीम हैज कंटिन्यूड द ऑपरेशन परिवर्तन. इट्स अ सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. इट इज जीरो बजट इनिशिएटिव. इसके लिए कोई नया स्कीम, नया बजट नहीं चाहिए. इट्स अ विन विन सोल्यूशन. इसमें विद अ जीरो बजट हम लोग ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में ला पाए हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व थे. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस. अराउंड 80% ऑफ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द लिकर इटसेल्फ, एंड लगभग जो 700 प्लस फैमिलीज इसमें रिहेबिलिटेट हुए हैं, उससे मेजर चंक जो है वो 215 लेडीज का है जिनके पास अपना एंसेस्ट्रल स्किल था, लेकिन उसे मार्केट ना होने की वजह से वो स्किल भी उनका खत्म होता जा रहा था, एंड दे वर अनेबल टू हैव अ लाइवलीहुड विद दैट स्किल. तो उसे मॉडर्न फॉर्म में कैसे रिफ्लेक्ट किया जा सकता है ये सोचा गया और वुमेन एम्पावरमेंट इसके द्वारा किया गया. And it has altered the image of the police and the administration from the hostile to the handholder. Next, please. Next, please. सोलापुर में हाथ भट्टी लिकर ये प्रॉब्लम लगभग 9 दशकों से था. स्वतंत्रता पूर्व काल से यहाँ पे 10-12 ऐसी बड़ी जगह थी कि जहाँ पूरे गांव के गांव सिर्फ हाथ भट्टी की दारू ही निकाला करते थे और इसके अलावा वो और कोई काम नहीं करते थे. So the population of these places ranges from 1,000 to 5,000. इस इन 11 जगहों के अलावा ऐसे 48 spots थे जहाँ पे few families were involved in the हाथ भट्टी liquor, and like the village was like any other normal place, but the few families were doing this. So किसी भी वक्त अगर पुलिस रेड के लिए जाती है तो ये जो 11 बड़े हॉटस्पॉट हैं वहाँ पे हमें लाखों हजारों लीटर्स हाथ भट्टी लिकर के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिला करता था. हजारों लीटर दारू वहाँ पे मिला करती थी. और सिर्फ सोलापुर ही नहीं, सोलापुर सिटी,
शोलापुर रूरल छोड़ के बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट में शोलापुर से हाथ भट्टी की दारू छुपे रास्ते इलीगल वे से जाया करती थी, जिसमें सातारा, पुणे, सांगली, कोल्हापुर और मराठवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट जैसे लातूर, बीड़, उस्मानाबाद का भी समावेश था और कर्नाटक के 2 डिस्ट्रिक्ट जिसमें विजापुर एंड कलबुर्गी, इनका समावेश था। सो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने बड़ी मात्रा में हुआ करता था। अगर हम देखें कि रेड्स वहाँ पे पहले हुई थी या नहीं, तो अगर हम 2 दशकों से भी देख लें तो पुलिस की हजारों रेड्स वहाँ पे हुई है, फिर भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था। एंड कोई अगर हम देखें कि इन्वॉल्वमेंट किसका था, तो बंजारा कम्युनिटी वाज मोर देन 60% people who are involved into this. 20% Pardis are involved into it. These two are basically the denotified tribes. और इसके अलावा उर्वरित जो 20% है उसमें सभी कास्ट एंड कम्युनिटीज के लोग इन्वॉल्व थे बिकॉज ऑफ द इजी मनी आउट ऑफ इट। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। Doing the raids has been always the ट्रेडिशनल अप्रोच टू लुक टू दिस प्रॉब्लम। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हजारों रेड्स हर साल यहाँ पे हुई है, हजारों लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, हजारों लीटर, लाखों लीटर रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय किया गया है, हजारों लीटर कॉन्फिस्केशन हुआ है, डिस्ट्रॉय किया गया है और कितने सारे केसेस फाइल हुए हैं, लेकिन ये बिजनेस बंद नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट प्लीज। हमने भी जब ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत करी जनवरी 2020 में, वी ऑल्सो स्टार्टेड विद दी सेम अप्रोच। तो हम देख पाएंगे कि 19 में जो रेड्स हुए थे जनवरी से अगस्त तक, दैट वाज अराउंड 1700। यही 20 में जो किए गए वो 1900 के आसपास। जब 21 में इसकी शुरुआत हुई तो 2900 मीन्स ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ 2019 केसेस कर चुके थे, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जैसे ही पुलिस रेड्स करके बाहर निकली वैसे ही वो फिर से भट्टियां लगाना शुरू कर देते थे। तो इसका रीजन ये था कि इतने रेड्स के बावजूद भी उनके लिए ये प्रॉफिटेबल था। और ये प्रॉफिटेबल क्यों था? क्योंकि उन्होंने एक प्रेशर बना के रखा था पुलिस पे कि अगर पुलिस किसी गांव में 50-60 की मात्रा में जाएगी तो वो पथराव करके पुलिस को ही अटैक कर देते थे। तो पुलिस वहां पे अगर जाना है तो 200, 250, 300 जाना है तो ही वहां पे रेड सक्सेसफुल हो पाएगी। तो वो एक जो प्रेशर था उसके वजह से पुलिस भी इतना मैन पावर इकट्ठा करके इतने जगहों पे रेड 1 या 1.5 महीने में एक ही बार कर पाती थी। सो एक बार 1 दिन का नुकसान हुआ है और बाकी दिन अगर वो फायदे में है तो ये बिजनेस उनके लिए प्रॉफिटेबल बचता था। अगर फैमिली में कोई 1 या 2 व्यक्ति अरेस्ट भी हो जाते थे फिर भी घर की महिलाएं इस बिजनेस को आगे चलाती थी, घर के बच्चे तक इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे और इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। 15-20 दिन में लोग बेल आउट हो जाते थे, फिर से आते थे और फिर से उसी जोर शोर से वो अपना इलिसिट बिजनेस करते थे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। और इसी वजह से सिर्फ रेड्स करके या अरेस्ट करके या केसेस फाइल करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इस कंक्लूजन पे पूरी टीम पहुंची और इसके बारे में चर्चा शुरू हुई कि क्या किया जा सकता है। एंड देन दिस होलिस्टिक सोल्यूशन वाज डिजाइन, जिसमें एक्शन तो था ही लेकिन उसमें और कंपोनेंट्स थे जैसे कि काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। तो एक्शन रखना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब तक हम लोग एक्शन और नहीं बढ़ाएंगे और इसको अनप्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे तब तक वो अक्रॉस द टेबल बैठने के लिए भी राजी नहीं थे। तो हम लोगों ने रेड्स जो बढ़ाए, वो जब 60 दिन में एक बार रेड हुआ करता था वो पहले 15 दिन तक आया। 15 दिन तक आने के बाद भी देखा कि फिर भी ये प्रॉफिटेबल रहता है। सो एवरी 3rd डे वी स्टार्टेड रेडिंग। सो शुरू में हमें बहुत सारा मैन पावर इकट्ठा कराना पड़ा, बहुत सारा फोर्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी कभी मंगाना पड़ा, हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी सारे पुलिस स्टेशन से निकालना पड़ा। लेकिन शुरू के 2 महीने में इतना ब्रेकडाउन हुआ कि उन्हें लगा कि शायद शुरू में पुलिस ये करेगी लेकिन बाद में नहीं करेंगे। लेकिन जब 2 महीना हर तीसरे दिन रेड होता रहा, देन दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि हमें सुनना पड़ेगा, पुलिस क्या बोलना चाहती है इसे हमने सुनना चाहिए। एंड देन दे स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग फॉर द काउंसलिंग। सो काउंसलिंग वाज अ वेरी ह्यूमन फेस ऑफ पुलिस के, जिसमें हमने उन्हें ये बताने की कोशिश करी कि आप जो सोचते हैं कि आपके पूर्वजों ने यही किया है और इसके अलावा आप दूसरा और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ग्लोरियस है और आपके पूर्वजों ने ये छोड़ के भी बहुत सारी चीजें करी हैं।
बंजारा के बारे में उनको बताया गया कि व्यापार ये बंजारा का हमेशा व्यवसाय रहा है और उनका स्किल सेट रहा है, तो अगर वो चाहते हैं तो हम उनका हैंड होल्डिंग करेंगे और उनको मदद करेंगे, लेकिन अगर वो यही व्यवसाय करेंगे तो हम उन्हें वो नहीं करने देंगे। एंड देन फ्यू पीपल स्टार्टेड कमिंग अहेड विद अ पॉजिटिव अप्रोच। उनका रिहेबिलिटेशन करना शुरू हुआ, जिसमें गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं उनको देने की हमने कोशिश करी। उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिए गए, उनके लिए गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स दिए गए, एनजीओ की सहायता ली गई। एमआईडीसी में उनके जो बच्चे जो पढ़े लिखे थे और अभी तक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जिनके नहीं थे, उनको नौकरियां दी गई। और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि एक पॉजिटिव अप्रोच बनता गया और पुलिस को जो वो हेट करते थे, अटैक किया करते थे, वैसा ना होते हुए वो पुलिस का सुनने लगे। पुलिस भी हमारे भलाई के लिए ही बात कर रही है, ये उनके समझ में आया। एंड द फोर्थ स्टेज वाज अवेयरनेस। इट वाज फॉर रिड्यूसिंग द डिमांड साइड ऑफ इट। अगर दारू पीने वाले भी पीना कम कर देंगे या डिमांड उसकी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कोई उनके लिए प्रोत्साहन नहीं बचेगा कि वो इसका व्यापार क्यों करे। सो दिस फोर्थ थिंग वाज फॉर दैट। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। सो एक्शन में हम देख पाएंगे कि वी इनिशियली आइडेंटिफाइड द प्लेसेस जहाँ पे दारू बनती है और जहाँ पे दारू बेची जाती है, और उस सारे जगह पे एक एक ऑफिसर को हमने पेरेंट ऑफिसर करके नियुक्त किया कि जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर तीसरे दिन उसने रेड करना है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये दो ग्राफ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें रेड्स जो है, मीन्स केसेस जो दर्ज हुई है और अक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं, उनकी संख्या कम कम होती दिखती है। वही राइट हैंड साइड में हम देख पाएंगे कि विजिट्स तो उतने ही रहे हैं, क्योंकि रेड्स दो चीजों में कम हो सकते हैं। एक बार कि सच में प्रोडक्शन कम हुआ इसलिए रेड्स कम हुए, या फिर दूसरा पुलिस गई ही नहीं रेड करने के लिए इसलिए रेड कम हुए। लेकिन यहाँ पे पुलिस की विजिट्स लगभग उतनी ही रही हैं। हमने उतनी ही काउंसलिंग सेशंस किए हैं, उतनी ही विजिट्स वहां पे रखे हैं, लेकिन फिर भी हमें वहां पे दारू नहीं मिलती थी क्योंकि सच में उसका प्रोडक्शन कम होता गया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। लगभग 3000 से ज्यादा काउंसलिंग सेशंस एक साल में कंडक्ट किए गए, जिसमें उपस्थित रहने वालों की संख्या जो थी वो 50 से लेके 500 तक वेरी हुआ करती थी। नेक्स्ट प्लीज। These are few photos of the counseling sessions. Next please. Next please. रिहेबिलिटेशन का जो कंपोनेंट है, इसमें 700 से भी ज्यादा फैमिलीज आज तक रिहेबिलिटेट हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में हम देख पाएंगे कि 153 यूथ्स, जो उनके बच्चे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, 10th पास थे, 12th पास थे, उनके एजुकेशन के हिसाब से एमआईडीसी को रिक्वेस्ट किया गया कि वो इन्हें अपने पास हायर कर ले, और ऐसे 153 यूथ्स को जॉब प्रोवाइड की गई। There were 41 women जिनको परिवर्तन उद्योग समूह उन्होंने अभी बनाया है, जिनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया गया था। और ये जो शर्ट सिलाती हैं ये औरतें, इनके शर्ट्स अभी जर्मनी जापान तक एक्सपोर्ट हो चुके हैं, और जो जिले के स्कूल्स हैं वो स्कूल्स के भी यूनिफॉर्म के ऑर्डर्स अभी इनको मिलते हैं, और जो पहले हाथ भट्टी की दारू बनाया करते थे वही अभी यूनिफॉर्म सिला रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिहेबिलिटेशन, जिसमें जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि एम्ब्रॉयडरी, अगर हम किसी भी बंजारा लेडी का पोशाक देखें तो उसमें बहुत सारा कला का काम होता है, लेकिन ये कपड़े एक कम्युनिटी के और उस कम्युनिटी के भी सिर्फ बुजुर्ग लोग ही अभी पहनते हैं, तो इसलिए उसे मार्केट में कोई डिमांड नहीं था। सो यही जो स्किल है वो मॉडर्न फॉर्म में कैसे रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में सोचा गया। इन्हें ड्रेस डिजाइनर्स जो हैं उनको बुला के इन्हें ट्रेनिंग दिया गया और मॉडर्न फॉर्म में उनकी कला को रिफ्लेक्ट किया गया, और अभी यही एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट्स बनाने में ये 215 महिलाएं जुटी हुई हैं और सम्मान से जी रही हैं। प्राइवेट कंपनी में जॉब्स 153 उनके बच्चे कर रहे हैं। सिविंग मशीन ऑपरेटर्स 41 हैं, जिनके पास खेती थी लेकिन बिकॉज ऑफ इजी मनी जो खेती ना करते हुए हाथ भट्टी का काम करते थे, ऐसे 76 फार्मर्स हैं जो फिर खेती पे शिफ्ट हो गए और अभी खेती कर रहे हैं। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स 77, जिनको पुलिस ने कोऑर्डिनेट करके जॉब दिलवाने का, किसी खेत में काम दिलवाने का कोशिश किया है। एनिमल हस्बेंड्री में 69 फैमिलीज हैं, स्मॉल शॉप्स में 83 फैमिलीज है, और लगभग 714 फैमिलीज एक साल में रिहेबिलिटेट हो चुकी हैं। नेक्स्ट प्लीज। These are few photos of rehabilitation, जिसमें आप देख पाएंगे कि ऑटो रिक्शा है,
shops are there. Next please. परिवर्तन उद्योग समूह जिसके बारे में मैंने बात करी, जहां पे अभी ये स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, शर्ट्स और यूनिफॉर्म सिलवा रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी दी फोटोज ऑफ द एग्जीबिशन. तो जब ये इन औरतों ने अपना कला मॉडर्न फॉर्म में रिफ्लेक्ट करना शुरू किया तो इन्हें ये सवाल था कि ये पता नहीं बाहर बिकेगा या नहीं, कोई इसे पसंद करेगा या नहीं. तो ये पुलिस की वेलफेयर हॉल में एक बड़ा सा एग्जीबिशन लगाया था, जहाँ पे 3 दिनों में 3 लाख से भी ज्यादा रुपए का माल उनका खपत हुआ. लोगों ने खरीदा, लोगों ने पसंद किया और फिर उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस आया कि ये चीज लोगों को पसंद आ सकती है. और आज कुशन्स हैं, साड़ीज हैं जिसपे ये बुनाई का काम कर रही हैं और बड़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. सो दीज आर अवेयरनेस सेशंस. जिस गांव में औरतें पुलिस स्टेशन आती थी और कंप्लेंट करती थी कि हमारे यहाँ पे हाथ भट्टी की दारू बिकती है, उन गाँव को चुना गया और वहां जाके उनके साथ बात करके कि ये दारू कैसे घातक हो सकती है, आपके लिए हानिकारक है और ये नहीं पीनी चाहिए, आपके फैमिली का इससे कितना बड़ा नुकसान है, आपने हेल्थ का कितना बड़ा नुकसान है, ये उनको बताने का कोशिश करके डिमांड जो है वो डिस्करेज करने का कोशिश किया गया. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. We can see the impact qualitative as well as quantitative. तो quantitative जो हमने देखा कि 714 families rehabilitate हो चुके हैं और especially from the denotified tribes जो अभी मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं. अगर क्राइम पे हम इसका इम्पैक्ट देखें तो 75 to 80% रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ हाथ भट्टी इटसेल्फ. हम लोग देख पाए कि 5.19% बॉडी ऑफेंसेस में डिक्रीज हुआ है, 8.14% डिक्रीज इन द क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड स्पेशली 498A. तो ये जो 2 फिगर्स हैं वो पहले साल से कंपैरिजन में हमें कम हुई है यह देखने को मिलता है. बेसिकली हम सब जानते हैं कि हर साल जनरली 5 to 10% क्राइम इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे इन 2 हेड्स में क्राइम डिक्रीज हुआ है. तो अगर हम इफेक्टिव डिक्रीज देखें तो दिस डिक्रीज इज नॉट 5%, इट इज अराउंड 10%. एंड इफ वी सी द इफेक्टिव डिक्रीज इन द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इट इज अराउंड 13%. नेक्स्ट प्लीज. अगर क्वालिटेटिवली हम देखें तो पुलिस का इमेज, एडमिनिस्ट्रेशन का इमेज लोगों में बहुत अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ और क्राइम में भी इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला. 353 के जो ऑफेंसेस हैं वो लगभग 40% से कम देखने को मिले. पब्लिक अगर हम देखें तो जो खुद इन्वॉल्व थे वो अभी इससे बाहर निकले हैं, उनके फैमिली का वातावरण जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, बच्चों के लिए हेल्दी बन रहा है. कंज्यूमर्स के बारे में सोचे तो डेफिनेटली मास पॉइजनिंग रोकने का एक बहुत अच्छा कोशिश इसके माध्यम से सोलापुर पुलिस ने किया है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. इसका जो गवर्नेंस है उसमें ये 5 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग किया गया है कि हमने एग्जैक्टली क्या स्टेजेस लेने चाहिए कि ये सक्सेसफुल होगा, उसके लिए उसके पास्ट हमने क्या किया है और सिर्फ रेड्स इसके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती. तो क्या करना चाहिए, इसके लिए रिसर्च हम लोगों ने किया. इन लोगों के एजुकेशन क्या है, इनके स्किल्स क्या है, इन्हें कुछ अल्टरनेटिव अगर हम देना चाहें तो कहाँ कहाँ दिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, ये सारा देख के इस सारे इंफॉर्मेशन के बेस्ड हमने डिसीजन मेकिंग किया था. सेकंड वाज अ माइक्रो प्लानिंग कि जैसे हर एक गांव है वो एक ऑफिसर को हम लोगों ने उस पेरेंट ऑफिसर वहां पे नियुक्त किया था और हर तीसरे दिन सच में रेड्स हो रहे हैं या नहीं इसका बहुत माइक्रो प्लानिंग करके उसका फॉलोअप बहुत अच्छे से ले सके, इसलिए हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिले. देयर वाज अ कंसिस्टेंसी. अगर हम पूरे 1 साल का देखें तो 85% कंप्लायंस जो प्लानिंग किया था उसमें हम कर पाए. टीम बिल्डिंग, जो लोग सेंसिटिव हैं, जो इच्छुक हैं इस प्रोग्राम में काम करने के लिए, ऐसे लोगों को चुना गया था, उनका ट्रेनिंग दिया गया था एंड दैट्स व्हाई वो खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड थे. एंड आवर बेस्ट प्रैक्टिस दैट इज एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी. अगर हम बाकी सब कुछ भी कर लेते लेकिन उसमें ह्यूमैनिटी और एम्पैथी नहीं होती तो शायद इतना अच्छा रिस्पॉन्स जिनके लिए काम किया जा रहा है उनसे नहीं मिल पाता. लेकिन बिकॉज ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी जो हेट्रेड था, जो पुलिस को दुश्मन समझने की धारणा थी, वो धीरे धीरे कम हो गई और वो भी हमारे साथ जुड़ गए और इसके वजह से इस प्रोजेक्ट को सक्सेस मिला. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. तो हम देख पाएंगे कि जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था, अगस्त 2021 में इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेशन परिवर्तन हुआ क्योंकि हम समझ चुके कि जनवरी से अगस्त लगभग दुगनी रेड्स करने के बावजूद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे और जुलाई 22
onwards we started seeing the results, and Operation Parivartan shall continue till the production becomes 0%. Next please. Next please. मीडिया में इस ऑपरेशन को काफी सराहा गया और जिससे पूरी टीम भी मोटिवेट होती रही. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. So this is the appreciation letter sent by Honorable Srinivas sir, and another one is the certificate given by the Solapur University after doing the third party analysis. Next please. Solapur Police was given the award as a best unit in the community policing for year 2022. This is the FICCI award of year 2021 for the community policing, and the Governance Now award of year 2022 for the policing initiative. Next please. I would request to play the first film please. Thank you. मध्य भारत में स्थित महाराष्ट्र राज्य का सोलापुर जिला अपनी स्वतंत्रता के काल से इतिहास से भरा पड़ा है। यहाँ का सोलापुरी चद्दर का व्यापार तो दुनिया भर प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता पूर्व काल से इस जिले के 56 गांवों के लोगों ने अवैध शराब के धंधे को अपना लिया था और यहाँ इसका खुलेआम व्यापार चल रहा था। हाल ही में देखा गया है कि अवैध और जहरीली शराब के कारण बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और भारत के कई अन्य राज्यों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सोलापुर जिला के अवैध शराब व्यवसाय को खत्म कर उन परिवारों को सूझबूझ के साथ भावनात्मक सहारा देकर रोजगार दिलाने का काम सोलापुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला प्रशासन की तरफ से किया गया और इस अनोखी मुहिम को नाम दिया गया ऑपरेशन परिवर्तन। रेड्स, काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन और अवेयरनेस, इस चतुसूत्री पर आधारित ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की गई। प्रारंभिक चरण में ऐसे गांव जहां पे केवल 5-10 घर ही हाथ भट्टी शराब के व्यवसाय पर निर्भर थे, वास्तव में वो परिवार पुलिस के परामर्श सेवा से तुरंत सकारात्मक हो गए और फिर उनके पश्चात हमारी तरफ से उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करवाया गया, नौकरी पाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई। अगर किसी को गाड़ी चलाने आती थी तो उन्होंने ड्राइविंग का काम शुरू किया। इसके अलावा बाकी लोग जो अनस्किल्ड थे उन्होंने किराने की दुकान शुरू की, किसी ने कपड़े की दुकान चलाना शुरू किया। एक भाई ऐसे थे जिनको हलवाई का काम आता था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने अपना काम खो दिया और मजबूरी में वो हाथ भट्टी की दारू बनाना उन्होंने शुरू किया। जिस जगह पे पहले वो हथभट्टी की दारू बेचते थे, वहीं पे अभी वो मिठाई बेच रहे हैं। इन व्यवसायों के बदौलत उनके परिवार भी बसे और इसी वजह से हम सबका हौसला भी बहुत बढ़ गया। ऑपरेशन परिवर्तन के तहत इस मुहिम को चतुसूत्री यानी कि निरंतर छापेमारी, परामर्श, पुनर्वास और जन जागरण के साथ काम की शुरुआत की गई। अवैध शराब के व्यवसाय से उनके परिवार का पहिया चलता था, इसीलिए हर 3 दिन बाद छापेमारी करके अवैध शराब के ठेके या फिर जहां वो अवैध शराब बनती थी उन भट्टियों को बंद करवाया गया और कई तरीकों से सबसे बात करके उनके खुद के व्यापार के बारे में बताया और फिर उन्हीं परिवार की महिलाओं को उनकी पारंपरिक बंजारा समुदाय की प्रसिद्ध हस्तकला की विशिष्टता को जानते हुए गुणवत्ता वाली साड़ियों और आभूषणों को बनाने का काम दिया गया। समय के साथ इस अभियान ने एक ग्रामोद्योग का रूप ले लिया। इस परिवर्तन के तहत शामिल गांव के प्रत्येक परिवार को सरकार और बैंकों के माध्यम से उद्योग को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। गांव के कई भाइयों ने खेती को अपनाया तो किसी ने मिठाई बनाकर उसे बेचने को अपना व्यापार बनाया।
तो कई युवक नौकरी और कई तरह के उद्योग के प्रति समर्पित हो गए। CSR की मदद से परिवर्तन उद्योग के तहत कुछ महिलाओं के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई और उन्हें प्रशिक्षित करके उनके पेशेवर काम की शुरुआत की गई। डिजिटल इंडिया के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इन इनोवेटिव साड़ियों और गहनों को गोरमाटी आर्ट ब्रांड नेम के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल एवं अमृत महोत्सव के लिए तिरंगे भी बनाए गए और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोलापुर पुलिस कर्मियों ने इन्हें गर्व के साथ फहराया। भारत भर में चल रहे अन्य प्रदर्शनों में इन महिलाओं द्वारा किए हुए काम को सराहा जा रहा है। अवैध शराब के धंधे पूर्ण तरीके से बंद होने के बाद अब यहाँ के कई ग्रामीण व्यवसाय देश भर में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। सोलापुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला प्रशासन सोलापुर और पुलिस अधीक्षक IPS तेजस्वी सातपुते के महिला सशक्तिकरण की व्यापक दृष्टिकोण के साथ बनाए गए इस ऑपरेशन परिवर्तन की चतुसूत्री योजनाएं इनोवेटिव, सस्टेनेबल और रेप्लिकेबल यानी कि अभिनव, टिकाऊ एवं आसान और अनुकरणीय है, जिसे हर जिला प्रशासन अपने जिले में अमल करके समाज में बदलाव ला सकते हैं। Thank you, sir. Thank you very much. Today we have heard two very commendable initiatives, the Chandauli Black Rice Project and the Operation Parivartan. So let me open the Q&A session. First for Shri Navneet Chahal. Can you please tell us how much you engage with these 1,000 farmers and across how many villages, and also this area, how has it increased? And how do you see it now that you've moved on? How much is the sustainability? Is the Agriculture Department collaborating with the project and taking it forward? And how much of a role do they have in implementing this on a pan Uttar Pradesh basis? I recall Chief Secretary Uttar Pradesh telling me that the project is being replicated in Siddharth Nagar and a few other districts also. So please share your experiences, and how do you remember your interactions with the 1,000+ farmers who took up in the scaling up phase? Thank you, sir. The initiative basically took off around that time, 18 to 2020, and then later on, a lot of districts of UP and the adjoining state of Bihar, they took up that initiative. And the demand for black rice also increased. We have had several big firms and organizations that have reached out to farmers in Chandauli and to other districts like Sonbhadra, Mirzapur, like the LT Foods by the brand name of Dawat. Similarly, the India Gate basmati rice, they also got some produce some black rice from Chandauli and alongside districts. Similarly, Shri Lal Mahal, KRBL, Sukhbir Agro. So there has been an increase in demand. There has been an increase in production alongside Chandauli in other districts as well. And so the Chandauli Kala Chawal Krishak Samiti that was formed during that time, that was converted to an FPO. The FPO is very successfully running, sir. It's 3 years into running now. And they got 8 lakh rupees as an equity grant from NABARD. That is one of the highest grants any FPO would have got. They have a share capital of around 11 lakhs. They have a turnover of more than 50 lakhs currently. The grant of 10 lakhs that we received from the Prime Minister's award, they're going to use it as for starting a unit for packaging and labeling. Similarly, under the Drishti project of UP government, sir, they've applied for a processing plant for which they'll be getting 60 lakhs rupees. So that will be another big leap forward for them. Like I told in the presentation, sir, in the year 2021, this product
which had only the black rice was only grown in Chandauli for 3 years, but then it became one district, one product for the Chandauli district, other than the Zari Zardozi one. So we have two one district, one products there. So under that scheme also farmers got a lot of exposure in the form of training, in the form of grants and financial assistance, in the form of their market development assistance scheme, wherein their product has been showcased across various places nationwide. In the Noida International Trade Show in September 21st to 25th, they'll be displaying Chandauli black rice there also. So they've got good exposure, sir, and in the adjoining districts, this has picked up really well. And after Australia, it was also exported to US, Germany, Qatar, and other countries as well. So constant, of course, handholding is required, but they are on their own also now, sir. The directors of Chandauli Kala Chawal Farmers Producer Organization, which has now become. So they are directly negotiating with all the exporters. They have not started exporting on their own, but they are in direct touch with all the big names, all the big players, and they are directly negotiating with them. They are selling their produce directly to them. It is also being sold at the Pandit Deen Dayal Upadhyay junction, the erstwhile Mughal Sarai junction, which is there in the district of Chandauli. And they're getting good sales from there as well, because that station, that junction has a lot of passengers moving in and out. So all kind of support from the state government the farmers are receiving from the ODOP scheme or from the after becoming an FPO. And so me myself, sir, the agriculture department officers of those times when we were there in the district, similarly the industries department officer of those times, we are in touch with the FPO farmers and the current administration as well, so that we keep encouraging them and motivating them so that they can achieve their best potential. Thank you. For the Operation Parivartan, I have my colleague Srimati Sarita Taneja has a query. Yes, please. Namaskar Tejasvi ma'am. First of all, I would like to place my compliment and appreciation for addressing such a crucial problem in such a positive and concrete way. It is very impressive that instead of adopting the routine and traditional approach, stereotype action of state police, you try to address it through awareness and through counseling, and that too in such a constructive way. We all understand that it's a parivartan in truly literary meaning. But I just want to know what is the percentage of sustainability, because I can get it very quickly that this was a problem which was there for more than 9 decades, as you explained us. So, and the other thing is, there are two aspects. That one is this was a very old problem for such a 9 decades. पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग यही काम कर रहे होंगे। चीज है कि ये हम सब समझ रहे हैं कि उसमें इलिसिट शराब के धंधे में किसी भी कंस्ट्रक्टिव चीज से बहुत ज्यादा पैसा होगा। तो इन दोनों चीजों के मद्देनजर सस्टेनेबिलिटी के क्या इशू रहेंगे वहां पर, ये हम सब जानना चाहेंगे। थैंक यू। जी थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली इसमें जो हमारा पहला कंपोनेंट है एक्शन, वो एक्शन कंपोनेंट इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बेसिक पुलिसिंग छोड़ देंगे, एक्शन छोड़ देंगे, तो बाकी 3 चीजें हम करते भी रहे तो उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। उसका रीजन यही है कि इसमें इजी मनी है। तो अगर हम कितना भी प्यार से समझाए कि ये मत करिए, लेकिन फिर भी जब तक उन्हें पैसा मिल रहा है उनके लिए प्रॉफिटेबल है, बाकी चीजों का असर नहीं होगा। लेकिन हम बेसिक पुलिसिंग अच्छा करके उसके आगे जाके अगर काउंसलिंग ढंग से कर पाते हैं और फॉलो अप अच्छे से कर पाते हैं, तो उनके लिए शुरू में सिचुएशन ऐसी है कि हमने मजबूर कर दिया है उन्हें कुछ और सोचने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉफिटेबल ही नहीं है, उनको कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है उसके वजह से। और पुलिस हर तीसरे दिन रेड कर रही है। व्हाई ओनली 3rd डे? बिकॉज उनका जो साइकिल है दारू बनाने का वही 3 दिन का है। वो गुड़ लाते हैं, वो पानी में पिघलाते हैं, उसमें नवसागर डालते हैं, फिर उसका भट्टी लगता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप उससे दारू कलेक्ट होता है। तो ये सारा प्रोसेस ही लगभग 60 to 70 आवर्स का है। तो
तो हर तीसरे दिन अगर वहां पे जाके विजिट हो रही है तो वो ये प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बाकी कुछ सोचना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सोच के फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर हम वो उनके सामने रख देते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिवली उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन इसके लिए एक्शन कभी कम ना पड़े, ये हमें देखना चाहिए। जब ये किसी एक व्यवसाय में वो 6 महीने से ज्यादा रह लेते हैं, 1 साल से ज्यादा रह लेते हैं, तो फिर वो सस्टेनेबल हो जाता है। जैसे ये 41 लेडीज जो हैं, ये हमारा सबसे पहला रिहेबिलिटेशन है, सबसे बड़ा इन ग्रुप, कि जिसमें 41 लेडीज अभी काम कर रही हैं और इनको जो स्किल का ट्रेनिंग दिया है शर्ट सिलवाने का, सो दैट इज डन इन द ग्रुप। मीन्स फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेडी जो है वो कप्स मीन्स सिर्फ कप्स ही सिलवाएगी, दूसरी सिर्फ कॉलर ही सिलवाएगी, तीसरी सिर्फ उसका बॉडी ही बनाएगी। ऐसा करते करते जब वो 10th टेबल पे आता है तो शर्ट पूरा हो जाता है। सो व्हेन दे सिट टुगेदर, इट इज द टेंडेंसी कि वो अपने घर में काम करेंगे तो इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बट व्हेन दे डू इट इन ग्रुप, वो टाइम पे वहां पे आना, एक दूसरे को टोकना, और वो काम आगे चल पड़ा। तो अब जो कि वो 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, उन्हें हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अभी उसमें हो चुके हैं। बट द पीपल हु आर रिसेंटली रिहेबिलिटेटेड, उनके पास अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। दैट वाज द रीजन कि अगर किसी गांव में हमें भात भट्टी की दारू लास्ट टाइम नहीं मिली, फिर भी 3rd डे उसको विजिट करना है, और जो रिहेबिलिटेट हो चुका है उसके घर जाके भी चाय पी के तो आना ही है, देखना है कि वहां पे कुछ स्मेल तो नहीं आ रहा, वो फिर से वापस तो नहीं चला गया। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो कंसिस्टेंसी और फॉलो अप का है। अगर ये 2 चीजें रहती हैं तो ये डेफिनेटली सस्टेनेबल है। अभी मैं खुशी से बताना चाहूंगी कि मेरे जो सक्सेसर हैं वो वहां पे लास्ट 8 मंथ से है। आई गॉट ट्रांसफर्ड 8 मंथ्स बैक, बट स्टिल द ऑपरेशन परिवर्तन इज गोइंग ऑन। रिसेंटली अभी जो सोलापुर में 2 बड़ी यात्राएं होती हैं पंढरपुर की, तो उसके वजह से इन लास्ट मंथ दे कुड नॉट परफॉर्म बिकॉज दे वर बिजी इन द यात्रा। तो कम से कम 10-12 न्यूज़पेपर ने उनको इतना क्रिटिसाइज किया इसके लिए कि ये आपने क्यों नहीं किया, एंड द एसपी हैड टू टेक अ मीटिंग एंड टेल देम कि बिकॉज ऑफ यात्रा वी कुडंट डू इट, बट वी हैवंट स्टॉप्ड इट, वी आर कंटिन्यूइंग। सो कुछ अच्छा रिजल्ट उसका वहां पे मिलने के कारण एक प्रेशर जो है वो समाज की ओर से भी है कि ये आगे चलना चाहिए। एंड द टीम हैज बीन अप्रिशिएटिंग कि जो हमने हमेशा सोचा था कि ये कभी हो नहीं पाएगा, वो अभी हो चुका है। तो अगर हम अपना एक्शन कंटिन्यू रखते हैं, हमने जो शेड्यूल किया है वो एज पर शेड्यूल करते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो डेफिनेटली ये आगे चलेगा। एंड दैट इज द रीजन कि दोनों साइड से ये एक प्रेशर एंड फोर्स है कि वो आगे चलता रहेगा। एंड the recognition by the DARPG and the help of financial help of 20 lakh rupees to this project is also definitely going to be a great reason कि ये sustainable हो पाएगा. Thank you so much. Thank you very much. So we will conclude today's webinar. We've heard 2 very strong presentations which have entailed significant efforts for people's movement, both the Chandoli Black Rice Project and Operation Parivartan. So let me thank both our speakers, Sri Navneet Singh Chahal and Srimati Tejasvi Satpute, for making time to participate in the 16th National Good Governance webinar series. We have a record participation of more than 900 districts and state officials participating today. We also have received participation from several police officers, including I can see SP Jaisalmer, SP Jodhpur, a whole lot of commandants who are working in the field who have joined in. Thank you for your participation. Let me congratulate the Administrative Reforms Division for convening this webinar series, Sanjeev Srivastav, Rajshekharan, and our Joint Secretary, Sri NBS Rajput, who has worked hard to make this event possible. So thank you very much. The next webinar will be held, as always, on the last Friday of the month of August. So we conclude this 16th webinar series now. Thank you.